of the day. The seat-sharing pact between AAP and Congress has been finalized, not just for Delhi, but also for Gujarat, for Haryana, Goa, as well as Chandigarh. Both parties have said they're committed to the alliance and believe that they will now defeat the BJP together. The Congress and AAP have finalized the seat-sharing formula for Delhi, Gujarat, Goa, Haryana and Chandigarh. There will be no alliance between AAP and Congress in Punjab. दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। Both Congress and AAP said that they were committed to the India bloc, adding that the opposition will defeat BJP in 2024. आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। In Congress and or in any other party, when you make alliance, then you bound to disappoint somebody with somebody's seat. So I don't know the details, so I would not like to comment on it. By and large, Congress was mentally prepared, and Congress is physically and mentally both prepared to work for the alliance. The BJP has rejected India bloc as an alliance of the corrupt. जो कांग्रेस को कहते थे कि ये देश को बेच चुकी होती, अब उस कांग्रेस के साथ अलायंस करते हैं। 4 पर हम लड़ेंगे, 3 पर वो लड़ेंगे। इससे बेईमान और इससे लुटेरा मानसिकता इंसान दूसरा आपको नहीं दिखेगा जिस लेवल पे अरविंद केजरीवाल है। The opposition alliance, however, is clueless in West Bengal. The Congress says talks are on with the TMC. टीएमसी के साथ हमारे दरवाजा हमेशा के लिए खुले थे। हम बातचीत कर रहे हैं, हम आज भी चाहते हैं, क्योंकि टीएमसी ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहती हूं। मुझे बीजेपी हराने का पहला सबसे महत्वपूर्ण मकसद, सर्वोपरि मकसद, एक ही मकसद बीजेपी को हराना है। वो भी कांग्रेस का ही रवैया है, कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस का मकसद वही है। The TMC, however, insists that there is no change in its stand and it will fight on all the 42 seats in West Bengal. Bureau Report, India Today. Now, as we just told you in that report, there's no clarity on exactly what's going to happen in Bengal. While AAP and Congress have sealed the deal, Congress and SP have also confirmed their alliance. It's Bengal now that remains a big challenge. Congress claims talks are still going on with Trinamool Congress regarding seat sharing and that both parties have one aim, which is to defeat the BJP. The TMC, however, says there's no change in its stand and that they're going to be fighting on all 42 seats in West Bengal. As per TMC sources, Adhir Ranjan Chaudhary is the biggest obstacle between the TMC and Congress coming together because the Trinamool Congress is still extremely unhappy with how Adhir repeatedly targeted Mamta Banerjee, even when BJP Shubhendu Adhikari took a jibe at Rahul Gandhi. So the TMC is saying there's no question of talks while Adhir is still in the Congress fold. The Congress maintains that they are actually in talks with the TMC. अधीर चौधरी को सबसे पहले अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ये सबको मालूम है किस तरीके से पिछले कई सालों से वो यहाँ पर बंगाल में, जबकि तृणमूली कांग्रेस है जो बीजेपी को रोक सकता है, हर एक चुनाव में ये सबूत हो गया। वो एंटी बीजेपी फोर्स तृणमूल को डाउन करने के लिए, मेलाइन करने के लिए और बीजेपी को ऑक्सीजन देने के लिए जो करना चाहिए वो सब कर रहा है। ममता बनर्जी को लेकर बात बोल रहा है, अभिषेक बनर्जी को लेकर बात बोल रहा है, तृणमूल कांग्रेस को मेलाइन कर रहा है। जब तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ईडी सीबीआई का कार्रवाई हो रहा है उसको रिलीज कर रहा है, हमारा सरकार के खिलाफ बात कर रहा है। टीएमसी का क्या रहने वाला है? बातचीत जारी है।
बातचीत जारी है। टीएमसी के साथ हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले थे। हम बातचीत कर रहे हैं, हम आज भी चाहते हैं, क्योंकि टीएमसी ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहती हूँ। मुझे बीजेपी हराने का पहला सबसे महत्वपूर्ण मकसद, सर्वोपरि मकसद, एक ही मकसद बीजेपी को हराना है। वो भी कांग्रेस का ही रवैया है, कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस का मकसद वही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस तू मैं तो होती रहती है हमारे दोनों पार्टियों के बीच में, पर हम ममता जी का बड़ा सम्मान करते हैं। उनकी पार्टी के सुप्रीमो ममता बनर्जी बहुत पहले कह चुकी है, लेकिन फिर भी ये दुविधा में है, क्या करें। इसलिए हाँ या ना इनकी पार्टी की सुप्रीमो की तरफ से होना चाहिए, आधिकारिक रूप से होना चाहिए। लेकिन आधिकारिक रूप से ये नहीं कहे जाते हैं कि गठबंधन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी दुविधा में है। दुविधा नंबर 1, सत्तारूढ़ पार्टी की एक वर्ग, उनका यह मानना है कि अगर हम इंडिया गठबंधन छोड़ के अकेले चुनाव में उतरे तो बंगाल की अल्पसंख्यकों ने हमारे खिलाफ वोट डालेंगे। And all the latest updates on